Good morning, students. Welcome to social science class. Students, today we are going to start our chapter 3 from geography section. In our previous chapter, that was the earth and changes on it, we have read about the changes that occur on the earth's surface due to weathering, due to agents of gradation. And in today's chapter, we will discuss the surface and interior of the earth. अर्थ का सरफेस और उसका इंटीरियर. ओके, कि अर्थ के सरफेस पर रॉक्स हैं, देयर आर रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, तो वो कैसे फॉर्म हुए, एंड इंटीरियर कैसा है, अर्थ के अंदर से अर्थ किस तरह की है. The knowledge of Earth's interior is just based on observations. कोई भी अर्थ के अंदर डीप तक नहीं जा पाया. ठीक है. सो दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ओनली, कि जो हमने देखा, जो फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, उनके बेसिस पर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं. ओके. So in this chapter we are going to discuss just this. So let's start the chapter. If we look from the space, the planet Earth appears to be a large round ball that shines bright and blue. We have already learned in our previous class how the earth was formed about 4.6 billion 6 billion years ago. We also know that the sun is a star and planets revolving it had come out of it in the distant past. How the earth is the only planet where conditions are favorable for sustenance of life. Since its birth, the earth as well as other planets are undergoing changes. So let's study the structure of the earth's interior and internal forces which have led to the formation of its surface. So we all know that earth is a heavenly body or a celestial body, and it has a solar system. ठीक है. और it revolves around the sun. We have already knowledge about all these things. We have read in class 6th, right, कि सन है जो एक स्टार है और प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, एंड अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ दैट सोलर सिस्टम. Earth was formed about 4.6 billion years ago. Earth फॉर्म हुई 4.6 बिलियन ईयर्स पहले. And as we have discussed in our previous chapter that it doesn't remain the same. It changes during the time period, with the time it changes. Okay. So previous chapter में हमने external process read किया था, and in this chapter we are going to read about internal process. ठीक है, कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं, ऐसा कौन सा प्रोसेस वर्क करता है कि उनसे हमारी अर्थ का अपर सरफेस चेंज हो जाता है.
Only Earth is the planet where conditions are favorable for life. We have atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and all these things are required for the life on a planet. So, let's start our chapter in a proper manner. Earth's surface. The surface of Earth constitutes a great assemblage of physical features. Our Earth has a variety of landforms on its surface. These are huge mountains, deep valleys, vast structures of plains and tablelands or plateau. There are different landforms, huge mountain and mountains के साथ सेंटर में यहाँ पर ये वैलीज, ओके, देन प्लेन एरिया एंड द टेबल लैंड that we call plateaus. Clear? Our Earth has different type of landforms, and these are mountains, valleys, plateaus, plains. Okay. Their height and depth are different. High mountains to downlands, and it measure from baseline called mean sea level. जो हम ये हाइट किसी भी माउंटेन की हाइट मेजर करते हैं कि माउंटेन कितना ऊंचा है या प्लेन्स की हाइट क्या है, प्लेट्यूज की हाइट क्या है, तो वी मेजर फ्रॉम अ बेस लाइन कॉल्ड मीन सी लेवल. एक हमने सी का लेवल मेजर करने के लिए बेस लाइन बना रखा है, ठीक है. तो मेन सी लेवल से हम हमारी अर्थ की जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनकी हाइट को मेजर करते हैं. लैंडफॉर्म्स की हाइट को मेजर करने के लिए हम सी लेवल को अपना एक बेस मान लेते हैं. सी सरफेस को हम बेस बना लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सी लेवल. ओके. हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस इज माउंट एवरेस्ट, दैट इज 8,850 मीटर अबव द मीन सी लेवल. सी लेवल से कितनी हाइट पर है वो? 8,850 मीटर, ठीक है. जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट है, माउंटेन्स हैं, उनकी क्या हाइट है? इट इज 8,850 मीटर अबव द सी लेवल. एंड लोएस्ट पॉइंट इन द बॉटम ऑफ द मैरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. हाईएस्ट पॉइंट अगर हम सी लेवल से निकाल रहे हैं तो डीपेस्ट लेवल जो है, लोएस्ट लेवल, वो भी हम मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर बोथ द थिंग्स, द हाईएस्ट वन एंड द लोएस्ट वन. सो लोएस्ट वन कौन सा है? दैट इज मैरीना ट्रेंच. ओके. एंड इसकी डेप्थ कितनी है? 11,034 मीटर बिलो द सी लेवल. सी लेवल से वो 11,034 मीटर डाउन है एंड इट इज इन पैसिफिक ओशन. ओके. सो अंडरलाइन दिस पॉइंट, बोथ highest point and the lowest point of the earth. Okay. Now let's discuss the interior of earth.
इंटीरियर ऑफ अर्थ हैज़ रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर ईयर्स. अर्थ के अंदर क्या कुछ है ये मिस्ट्री रहा. मिस्ट्री मीन्स एक रहस्य, एक मिस्ट्री था. We know a little about it because down the temperature of earth is high. The intensive heat neither allows us to dig deep. Is there any possibility of living organism deep inside the earth, say at 3 to 8 kilometer below the surface? अर्थ के इंटरनल पार्ट में बहुत ज़्यादा हीट है. इट इज़ वेरी मच हॉट इनसाइड. ठीक है, तो वो इंटेंसिव हीट कभी हमें अलाउ नहीं करती कि हम डीप डिगिंग कर सकें, खुदाई कर सकें, कुछ चेक कर सकें कि इंटरनल पार्ट में है क्या. इट नेवर अलाउज अस टू डिग डीप. और इट इज़ सेड कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई इंसेक्ट या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अर्थ के अंदर हों, बिकॉज इट इज़ सो मच हीट इनसाइड द अर्थ. फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस वी हैव बीन एबल टू डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर. हम 3 to 8 किलोमीटर में भी बहुत ज़्यादा हीट है. 3 किलोमीटर के बाद वो हीट स्टार्ट हो जाती है. तो हम कभी गोल्ड माइंस की, जब वहाँ पर गोल्ड माइंस में गोल्ड हम फाइंड करने जाते हैं तो वहाँ पर भी डिगिंग पॉसिबल नहीं है. हम मैक्सिमम कितने डीपली उसको डिगिंग कर सकते हैं? ओनली 3.5 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस से अंदर तक वी कैन डिग जस्ट 3.5 किलोमीटर. ओके, यू कैन सी हियर द गोल्ड माइंस. ठीक है, तो ये अर्थ के अंदर जस्ट लाइक दिस, ये अर्थ का अपर सरफेस एंड इट इज़ द इनसाइड पार्ट. तो डिगिंग की जाती है गोल्ड माइंस में. ओके, और ये डिगिंग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच हॉट इनसाइड द अर्थ. क्लियर? दीज आर द पिक्चर्स ऑफ गोल्ड माइंस. ओके, तो इस तरह से अर्थ के अंदर डिगिंग करके वहाँ से गोल्ड कलेक्ट किया जाता है रॉक्स में से. Our Earth's interior knowledge is based on indirect observation. हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन indirect observation, like behavior of seismic waves. सिस्मिक वेव्स का कैसा बिहेवियर है, अर्थक्वेक कैसे पॉसिबल होता है. दीज आर जस्ट इमेजिनेशंस और द ऑब्जर्वेशंस. द अकरेंस ऑफ वॉल्केनोस. वॉल्केनोस कैसे इरप्ट होता है, ऐसा इंटरनली क्या होगा अर्थ के अंदर जिससे लावा बाहर आता है या वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं. तो दीज आर जस्ट द ऑब्जर्वेशंस. एक्सपीरियंस करके कि उस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करते रहे, सालों तक ऑब्ज़र्व किया, देखते रहे, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट बना दैट इज़ द बेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के बाद जितना भी समझ आया, जो भी पता लगा, उसे हमारे अर्थ के इंटीरियर का बेस बना दिया. Clear? Seismology is the science of the study of earthquake. Earthquake कितना हाई पावर का है और कैसे earthquake
होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जिसमें स्टडी करते हैं, दैट साइंस इज नोन एज सिस्मोलॉजी। The earthquake is the shaking and trembling of the earth's surface. What is earthquake? When earth starts shaking. अर्थ की मूवमेंट स्टार्ट होती है, वो हल्का हल्का हिलना शुरू हो जाती है, then we feel that it is earthquake. And these are just due to the internal movements. अर्थ के अंदर की मूवमेंट्स जो हैं, इंटरनल मूवमेंट्स हैं, इनके कारण अर्थ क्वेक्स आते हैं। ठीक है। शॉक वेव्स generated by an earthquake have their origin at a focus inside the earth. Shock waves means the waves due to these devastation or the destruction happened, and the origin of these shock waves is inside the earth, and it is called focus. अर्थक्वेक अर्थ में एक पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसे हम एफ फोकस कहते हैं। ये वेव्स फोकस से स्टार्ट होती हैं, अंदर का जो एक पॉइंट है जहाँ से वो वेव्स स्टार्ट हुई हैं, डेवलप हुई हैं। तो यहाँ पर उस फोकस से शॉक वेव्स स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज वेव्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज focus, and it is inside the earth. Just because of these waves we can felt the shaking of the earth, and the speed of these waves is different every time, and it depends on the nature of material they pass through. ये जो वेव्स फोकस से स्टार्ट हो रही हैं, इनकी स्पीड हर बार डिफरेंट होती है और डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। और वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पर। स्पीड, जो वेव्स की स्पीड है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो वाटर में मूवमेंट हो रही है या लैंड एरियाज में ट्रैवल कर रही है। सो दीज वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, P wave and S wave. P waves shows the primary waves and S waves show the secondary waves. P wave can move through both the material, whether it is liquid material or the solid material, and S wave can move from the solid medium only. और S wave की स्पीड जो है वो slower speed है than the primary waves. Primary waves are faster in speed. And the study of these waves tells us about the earth's surface. इन waves के बारे में स्टडी करके हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है। सिर्फ इन्हीं वेव्स का बिहेवियर है जो हमें बता सकते हैं कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में क्या है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. So that's it for today. You have to read it from your chapter, okay, and if you have any question you can ask. Thank you and have a nice day.